Okay, just give me confirmation that you can see the screen. Yes. Okay, thank you. So Jenkins. So Jenkins, why we use Jenkins? So first thing, though right now using this, we have created the project and we can execute multiple test cases here. Okay, using TestNG, using Maven, using directly, right? So very options we have tried. So we can do this. All the test cases we will be having, you can execute in one click right now. If you are right clicking on TestNG XML file and run as a suite, it will be executing, or directly right clicking on project and run as a Maven test, those will be executing. So within one click now we can executing guys, but still it is a limitation. We have to do it manually. Suppose I want to execute those test cases, uh, but I am not present there, and still those test cases are executing. Okay, so on cloud somewhere those test cases are executing, and actually manually there is no need of me to present. Suppose I need to schedule my test cases. Okay, like I want to schedule every day. Uh, if I'm starting my work at 10 a.m. suppose, and it is taking my test tube suppose 1 hour it is taking to execute. So what I will do, I will give some time like 8:30 a.m. daily from Monday to Friday, so that all those test cases should be executed. So when I log in at the 10 a.m., at that time I will be ready directly having a ready-made report. So I will be having today's status of the build. कितने टेस्ट केस फेल हुए, कितने पास हुए, मतलब पूरा का पूरा जो रिग्रेशन का ये होगा, या जो भी टेस्ट केस होगा उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे पता चलेगा कि हमारा आज का बिल्ड कैसा है, उसमें कुछ इशू है कि नहीं। ठीक है ना, सैनिटी से लेके बाकी सब कुछ चीजें कैसी चल रही है वो मुझे बिगिनिंग ऑफ द डे को ही पता चलेगा। तो कुछ इशू मुझे मिले तो मैं तुरंत उसको रेस कर सकूंगा, और जो भी टेक्निकल पीपल है, डेवलपर जो भी, उनको मैं एड्रेस कर सकूंगा। अगर यही मैं आने के बाद मैंने मैन्युअली शुरू किया, एक तो ये रोज एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है, जिसको 2-3 घंटे लगते हैं वो होने के लिए, अगर पूरा बहुत बड़ा होगा तो मैन्युअली करने पे और ज्यादा लगता है, क्योंकि लोकल मशीन पे रन होता है और तब तक हम लॉक हो जाते हैं, बाकी का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अपने आप अगर ये रन हो रहा है विदाउट मैन्युअल इंटरवेंशन, एंड इफ वी कैन शेड्यूल दैट, ओके, एंड नॉट रनिंग और लोकल लोकल मशीन पे रन ही नहीं हो रहा है, ऐसे हमें प्रोविजन करना है। ओके, तो ऐसी सारी चीजें जो है वो हम जेनकिन के साथ कर सकते हैं। तो जेनकिन इज ए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, तो ये हमेशा ऑब्जर्व करता रहेगा, हमेशा 24/7 वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, वो आपको इंटीग्रेटेड विद योर प्रोजेक्ट रहेगा, और जो भी टाइम आप देंगे उस वक्त वो उठा के आपका काम करेगा। आप बीच में 8 घंटा ही काम करोगे, 10 घंटा ही करोगे और सो जाओगे, but it will be continuously integrating with your project, and whichever thing you will be doing it will. So that is the power of Jenkins. Okay, so this is a continuous integration tool. इंटरव्यू में पहले तो मेवन बोलना है आपको, it is a build management tool and Jenkins is a continuous integration tool. We use this for executing our test cases on remote, ऐसे बोलना है, रिमोट पे, सर्वर पे, कुछ भी, या फिर क्लाउड पे, ये सारे मैं वर्ड बोल रहा हूँ। So not running or local means what? Running on remote, on server, on cloud means not your machine. So ऐसे हमें करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज Jenkins, and using Jenkins we can schedule our test cases also. We can create our multiple jobs in Jenkins, and we can schedule those according to the time. So those will be executed. It will do everything by its own. It doesn't depend on machine. Machine independent है वो. So no need of any installation or anything. Okay. So on cloud पे ही वो वेब सारी चीजें वो कर देगा, और मशीन उसकी लगेगी नहीं, उसका एक सर्वर होगा वहां पे वो करेगा। हमारे किसी भी मशीन पे हमारे मैन्युअली सारी चीजें रखने की जरूरत नहीं, बस कौन सी चीजें मेवन में हमें क्लियर करनी है तो वो करेगा वहां पे। मेवन की जो भी डिपेंडेंसीज है वो
रन टाइम वो डाउनलोड करके वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके बिल्ड वो अपना एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हमें बस उसे बताना है क्या करना है। सो ऐसी अगर प्रोविजन हमें करनी है तो हम जेनकिंस यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा, सो डू यू नो द हैव यू कॉन्फ़िगर्ड द जेनकिन पाइपलाइन और हैव यू कॉन्फ़िगर्ड द जेनकिंस? सो हमें बोलना है नो, for configuration of Jenkins pipeline and everything, we are having separate DevOps teams। और यही होता है, DevOps teams रहती है unless and until you are a full stack engineer। अभी ये concept आया full stack test engineer हो, ओके, और full stack tester। तो full stack tester मतलब जैसे full stack developer होता है जिसको सब कुछ आता है, सारे फेजेस आता है डेवलपमेंट के, तो उसी तरह से फुल स्टैक टेस्टर का कंसेप्ट अभी नया जो है वो है कि उसको मैनुअल टेस्टिंग भी आएगी, ऑटोमेशन भी आएगा, डेवऑप्स भी आएगा, डेटाबेस टेस्टिंग भी आएगी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी आएगी। ठीक है ना, ऐसे टेस्टिंग के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कुछ उसे ही आएगा। तो उसका पैकेज बहुत हाई है, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर फुल स्टैक डेवलप टेस्टर यू शुड नॉट डू दैट थिंग। तो अलग अलग रोल रहते हैं, तो हमारी टेस्ट टीम अलग रहती है और डेवऑप्स की टीम अलग रहती है। तो आप यू शुड हैव टू टेल that configuration and maintaining the pipeline part, creating the pipeline part is handled by DevOps teams. We just use existing pipeline and we just add our build there and our build there and we execute that and we just schedule that whenever it is needed। इतना ही बोलना है आप। तो उतना बस आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। ये इंस्टॉलेशन और जेनकिन ये चीजें इसमें टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि हम ये चीज करते ही नहीं है, और आपका अगर अप टू 5 years का ही एक्सपीरियंस है, 5 years के पहले, तो उसका सवाल ही नहीं आपको जाने का। ठीक है, तो इसमें मत, अनलेस एंड अनटिल आप डेवऑप्स हो, अगर आप डेवऑप्स भी लगा रहे हो आपके इस पे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियली आपको इसमें जाना नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये इंस्टॉलेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आप जब जेनकिन का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो आपको कैसे दिखता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विल सी जेनकिंस। F5 तो नहीं हो रहा है, F5। ये ऑप्शन जाओ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जेनकिंस। तो वंस यू डाउनलोड, मतलब आपके सिस्टम में जेनकिन ऑलरेडी है, तो आपको ऐसा एक वेलकम पेज आपको दिखेगा। ओके, तो ये दिस विल बी योर वेलकम पेज, वेलकम टू जेनकिंस। और इस पे आपको ऐसा, इसको बोलते हैं जेनकिन का डैशबोर्ड। ठीक है ना, तो इस पे ऐसे बहुत सारे आइटम्स आपको दिखेंगे। तो बस आपको इसके साथ फेमिलियर होना है कि हमारे पास एक जेनकिन का डैशबोर्ड होता है। तो वहां पे जाके हम क्या करते हैं, बस हमारा जो भी बिल्ड है वो ऐड करते हैं, शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगर करने का काम बस हम करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन यू डू तो ऑल द इनिशियल सेटिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग द आवर प्रोजेक्ट और आवर सेट ऑफ टेस्ट केसेस। जो भी बिल्ड होगा, हमने सिलेक्ट किए हुए टेस्ट केसेस होगी हमारा राइट नाउ, जो भी प्रोजेक्ट में हमने टेस्ट एनजी एक्सएमएल सूट में जो भी सिलेक्ट करके रखा होगा वही होगा ना। तो बस हम प्रोजेक्ट की लोकेशन या फिर हम गिट की भी लोकेशन देते हैं, यहाँ पे गिट से भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं। हम्म? तो प्रोजेक्ट की आपकी लोकल रिपोजिटरी की लोकेशन या फिर गिट हब पे हमारा आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे क्लाउड पे स्टोर है उसकी लोकेशन, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना, बिल्ड कॉन्फ़िगर करना। तो बस वो प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए ये डैशबोर्ड आपको थोड़ा सा, ये चीजें ये सारी आपने देखी हुई रहनी चाहिए कि कौन से फील्ड रहते हैं क्या। ठीक है, यहाँ से लेके हमारा काम शुरू होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पेज। देन सपोज यहाँ पे देखो, आप इस पे क्लिक कर रहे हो, प्लस दिख रहा है न्यू आइटम। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दिस और यू आर क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट अ जॉब, दोनों भी करोगे तो एक ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू आइटम, तो ये बोलेंगे कि ओके अभी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, ऐड करना है। सो यहाँ से लेके गाइस आप काम करने वाले हो कि आप कहते हो आप कैसे बताओगे। सो हाउ यू विल ऐड, आपको पूछेंगे ओके देन यू डोंट क्रिएट पाइपलाइन, देन हाउ यू विल कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट। सबके बताना है वी जनरली हैविंग जेनकिन डैशबोर्ड। सो फ्रॉम दैट, देन यहाँ से लेके जो भी मैं बता रहा हूँ आपको बताना।
Okay, so from that we will add create our new job, or will add our new item, and then we select the project. So you can select the Maven project. Okay, और यहाँ पे उसके लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं, तो वो शुभ बस ऐड होना जरूरी है, हाँ, आपके जेनकिंस में। नहीं तो वो प्लगइन्स आप कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी डेवऑप्स है तो बोल सकते हैं कि आने। मगर ये अगर आपको सेटअप करके दिया होगा तो ऑल प्लगइन्स विल बी देयर। तो आपको इधर फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट और मेवन प्रोजेक्ट दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है आपको, और आपको आगे बढ़ना है। तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कॉन्फ़िगर करने के। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस साइट में आपको बस ये ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको पाइपलाइन बनानी है, कैसे बनाना है। तो अब ये तो पाइपलाइन हम नहीं बना रहे, हम बस प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आप आओगे तो ये देखो, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये फील्ड थोड़े से पता होने चाहिए। तो ये फील्ड जो दिए है ना, उस पर वन बाय वन भी क्लिक करोगे तो सारे फील्ड ओपन हो जाएंगे। तो जनरल के कुछ फील्ड्स है, बिल्ड ट्रिगर्स है, बिल्ड एनवायरनमेंट है, प्री स्टेप्स है, बिल्ड है, पोस्ट स्टेप्स है। तो उसमें से ना हम बस कौन से वाले करने वाले सिलेक्टेड ही कर रहे हैं। हम बस जनरल के हमें एक हाथ करना है, वो भी जब टाइम लगेगा तब। और बाकी तो ज्यादा इसमें कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। बस क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो मगर ये ऐसे फील्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा पहले जनरल, अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है कि ओल्ड बिल्ड डिस्कार्ड करना है, गिटहब का प्रोजेक्ट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ शेड्यूलिंग वगैरह करने हैं, तो ये सब आप इससे कर सकते हो, ठीक है, जनरल से। अभी हम जनरल में कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल। वहां पे देखो, फिर आप क्या करोगे, बिल्ड स्टेप्स में जाओ। बिल्ड स्टेप हमें बनानी है। तो बिल्ड स्टेप में आपको, मैंने जो बोला था ना, कॉन्फ़िगर हमने किया था एमवीएन होम हमारे लोकल मशीन में। तो ये वहां पे आपको देना है आपका मेवेन का पाथ, क्योंकि ये मेवेन से उठाता है। तो एमवीएन होम आपका पाथ देना है, और आपको बोलना है कि क्या करना है, टेस्ट टेस्ट कीवर्ड को, मतलब आपको मैंने बताया कि मेवेन टेस्ट करना है, मतलब एमवीएन टेस्ट कमांड देनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें बस हमें यहाँ पे ऐड करनी है, एमवीएन होम मतलब मेवेन का हमारा पाथ, और टेस्ट। ओके, ये लोकल मशीन के लिए। अगर आपका कोई सर्वर है तो अकॉर्डिंगली दैट उसका आप दोगे, ठीक है। मगर उसका भी एमवीएन होम ही होगा अंदर, उसका पैरामीटर, ठीक है ना। बट इनिशियली आप जो पाथ दोगे वो आपके मशीन का नहीं होगा, वो सर्वर का होगा, ठीक है। तो ये करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट बिल्ड एक्शन मतलब क्या, एंडिंग में आपको रिपोर्टिंग करनी है एंड बिल्ड होने के बाद, तो रिपोर्टिंग का ऑप्शन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, पोस्ट बिल्ड इफ नीडेड। बाद में देखेंगे हम। उसके बाद मेन ये है कि आपको वर्क स्पेस देनी है कि कहाँ से उठाओ भाई इसको। तो मेरी जो लोकेशन है, वो लोकेशन यहाँ पे मैंने दी है कि ऐसे इससे उठाओ, इस लोकेशन से मेरे प्रोजेक्ट को उठाओ। जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट स्टोर है, सो प्रोवाइड द लोकेशन। एंड इफ योर प्रोजेक्ट इज नॉट लोकल मशीन, देन यू नीड टू प्रोवाइड अकॉर्डिंगली। मीन वो सर्वर होगा उसकी, या फिर आप गिट से ले रहे हो तो उसकी कौन सी ब्रांच उठानी है, वो उसकी सेटिंग आपको बतानी है। मगर ये लोकेशन इज मैंडेटरी। ओके, एडिंग दैट बिल्ड, ये जो हमने प्रोसेस किया है कि बिल्ड स्टेप्स में ये ऐड करना और लोकेशन ऐड करना, ये टू थिंग्स आर मैंडेटरी। हम्म बाकी की चीजें आपके अकॉर्डिंग है, आप जैसे यूज कर रहे हो, कि आप गिट कर रहे हो तो गिट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, नॉर्मल करो, अकॉर्डिंग टू दैट। दोज आर नॉट मैंडेटरी फील्ड्स, बस दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। तो बस आपको मैं मैंडेटरी फील्ड्स बता रहा हूँ, बाकी के जरूर नहीं होते करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जितने जरूरी होते हैं उतने मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको करना है। तो ये जनरल में ही तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने ये जो देखा था वो कहाँ पे, बिल्ड स्टेप्स में आएगा। बिल्ड स्टेप्स, तो बाकी का आप किसी को छेड़ोगे नहीं कुछ, बट बिल्ड स्टेप में ये आप करोगे। फिर आप जनरल में ही एक एडवांस सेटिंग आती है, उसमें आप ये पाथ देते हो, ठीक है। तो ये आपने कस्टम वर्कस्पेस की पाथ दे दी, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, अप्लाई करके सेव कर दिया। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना। हाँ, तो ये दिमाग में रखो, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉन्फ़िगरिंग द प्रोजेक्ट्स। दो चीजें हैं, क्रिएटिंग द, कॉन्फ़िगरिंग द जेनकिन और क्रिएटिंग द पाइपलाइन, ये चीज। और दूसरी है कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना हमारा, जो प्रोजेक्ट हम जेनकिन को कर रहे हैं बस वो जेनकिन में ऐड करके कॉन्फ़िगर करना। तो हम बस लेटर पार्ट का टेक केयर करते हैं, पहला पार्ट नहीं। जेनकिन का पूरा इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड जेनकिन की टेस्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, पाइपलाइन बिल्ड करना, ये डेवऑप्स करते हैं हम बस। रेडीमेड हमें जेनकिन का डैशबोर्ड मिला है, उस पे हम क्या करते हैं,
हम हमारा प्रोजेक्ट बस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये स्टेप्स उसका ये स्टेप्स जो मैंने बताई वो ऐड करते हैं बस उसमें। और उसके बाद क्या होगा, जब आप ये करोगे, सेव करोगे, तो आपका जॉब जो है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब क्रिएट होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, ये इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आया, वो छोड़ो। ये अगर मैं यहाँ पे देखो, ये ऐसा आपको डैशबोर्ड पे ये नया वाला जॉब क्रिएट हो गया। मैंने उसका टाइटल दिया था ये ट्यूटोरियल निंजा, तो ये टाइटल आ गया। और ये नया वाला जॉब यहाँ पे ब्लू, इस पे लिंक आती है, उस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो वैसे जॉब एक दिखा यहाँ पे, तो ये न्यू जॉब इज क्रिएटेड, लास्ट सक्सेस लास्ट फेल्योर सब एने है, क्योंकि मैंने ऐसे उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। उस पे मैं अगर ऐसे राइट क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शंस मुझे मिलते हैं। वंस द जॉब इज क्रिएटेड, अभी हमने जॉब किया, सेव किया, तो ये ऑप्शन मुझे मिले। तो ये ऑप्शन कौन से थे, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वर्कस्पेस, कॉन्फ़िगर, डिलीट, ओके, चेंजेस। तो ऐसे ऑप्शंस है, तो उसमें से हमें रीनेम, तो हमें क्या करना है, अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको बिल्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको राइट क्लिक करके आप कर सकोगे, या फिर अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जाओगे तो दूसरी जगह से भी ये सेम चीज पॉसिबल है। मगर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि जॉब क्रिएट हो गया, उस पे ऐसे अपने राइट क्लिक की और बिल्ड नाउ पे आप अगर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ऐसे जॉब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस पे अगर राइट क्लिक करके आपको, अगर आपने बिल्ड नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, बिल्ड नाउ पे आपने क्लिक किया, तो वो बिल्ड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे हमने किया था, इसमें राइट क्लिक किया था और एग्जीक्यूट यूजिंग मेवन डॉट टेस्ट किया था, या फिर हमने वहां पे कमांड दी थी कमांड प्रॉम्प्ट से एम्बिएंट टेस्ट, तो उसके बाद जैसे हो जाएगा, तो ये आपने अंदर जो भी कुछ दिया है वो सब एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पहले हमने बिल्ड पाथ में हमने क्या ऐड किया था, मेवन किया था, तो सबसे पहले वो मेवन को जाएगा और टेस्ट दिया था, तो मेवन टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा वो। और जो मेवन टेस्ट कर रहा था बिल्ड में, वो सारी चीजें वो यहाँ पे करना शुरू कर देगा। जिनकिन अभी ये केयर कर रहा है, वो अपने आप वहाँ पाथ पे जा रहा है, वहाँ पे मेवन उठा रहा है, मेवन से वो मेवन टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सारी चीजें अभी जेनकिन करेगा। सो दिस इज रियल ऑटोमेशन। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे लोकेशन पे जाके उठा के सब कुछ वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार अपने वी आर क्लिकिंग ऑन बिल्ड नाउ, तो मैं आपको इंडस्ट्री में जैसा मैं करता हूँ, जैसा यूज होता है, तो वो बस फील दे रहा हूँ कि हम क्या करते हैं ऑटोमेशन टेस्टर। तो उतना ही ध्यान दिमाग में रखो। बाकी एन नंबर ऑफ चीजें, वीडियोस, तो वो मत रखो, क्योंकि जेनकिंस में हमें घुसना ही नहीं है पूरा। तो ये रखो। तो एक बार आपने ऐसे किया तो यहाँ पे देखो, ऐसा आपको बिल्ड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्ड दिखेगा। ऐसे और ऐसी लाइन आगे आगे बढ़ेगी, मतलब प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग में जैसे होता है ना कि बिल्ड शुरू है, शुरू है, ये नाम का बिल्ड शुरू है। और यहाँ पे अगर तीन चार बिल्ड आपने एक साथ शुरू किए होगे तो वो सारे बिल्ड यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर है, तो उस पे #1 नंबर है, मतलब फर्स्ट बिल्ड है ये, तो ये नंबर है यहाँ पे। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये #1 है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो। तो एक बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आफ्टर क्लिकिंग ऑन #1 क्या होगा, उस बिल्ड की प्रोग्रेस दिखेगी पूरी। ठीक है, तो फिर वो बिल्ड ओपन हो जाएगा, उसका डेट, यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस है, ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए ऐसा वो बाहर आता है, ये आपको पता है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर उसकी रन टाइम कंसोल देखना है तो कंसोल आउट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप कंसोल आउटपुट पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे हमें दिख रहा था मेवन का, हम आउटपुट जैसे देखते हैं रन होते वक्त एट द टाइम ऑफ, वो एक एक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे आपको ये जो कुछ भी चीजें हो रही है वो सब दिखेगी। ओके, तो आप सब ऑब्जर्व कर सकोगे क्या क्या हो रहा है, ये रन टाइम आप ऑब्जर्व कर सकोगे, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे थे, जैसे हम एग्जीक्यूशन में करते हैं हमारे आईडी में, तो ऐसे आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये ऐसा आपका बिल्ड एग्जीक्यूट होगा। हम्म, अभी देखो, तो ये होगा कंप्लीट, और वो आपको बिल्ड सक्सेस वगैरह हो जाएगा या बिल्ड फेल हो जाएगा, और आपको क्या करेगा, आपके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। और एग्जीक्यूशन होने के बाद वो आपको पूरा रिजल्ट देगा। और अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन में, इनिशियली मैंने बताया था ना कि अब जब बिल्ड स्टेप करते हैं तो ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन में आपको पब्लिश टेस्ट रिजल्ट, या जो भी जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे बस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप करोगे तो जो भी बिल्ड में जो भी प्रोसीजर होनी चाहिए एंड में,
तो ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन में आप वो ऐड करोगे, सेव करोगे, तो आपके रिजल्ट्स वगैरह भी फिर उस आप जो भी आप लोकेशन दे रहे हो वहां पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लोकेशन भी देनी पड़ेगी कहाँ पे करनी है, तो देन योर रिजल्ट्स आल्सो विल बी क्रिएटेड। और अगर आप रिजल्ट नहीं भी कर रहे हो यहाँ से, तो भी आप टेस्ट इंजी रिजल्ट्स आप देख सकोगे यहाँ पे। सॉरी, रिजल्ट्स आप नहीं भी यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। और ये एक बार आपने किया तो फिर आपको यहाँ पे देखो अभी ये टेस्ट इंजी रिजल्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट इंजी रिजल्ट आपको यहाँ पे बिल्ड होने के बाद अपने आप एक कॉलम आ जाओ, ये एक फील्ड है जो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप टेस्ट इंजी रिजल्ट ऐसे देख सकोगे। ठीक है, तो एक एक इसको ओपन करके आप रिजल्ट्स को ऐसे पास फेल जैसे हम देखते थे वैसे पूरा रिजल्ट आप देख सकोगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे पूरा डिटेल्ड, ये जेनकिंस के फॉर ये टेस्ट एनजी, ये जेनकिन के आपको टेस्ट एनजी रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे, ये जेनकिन का फॉर्मेट वाले रिजल्ट्स है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। तो देखो हर एक टेस्ट का वो पूरा का पूरा बता रहा है, ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम, पास। ठीक, वैसे वो टेस्ट एनजी रिजल्ट आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एग्जीक्यूट करना। तो समझा सबको, बस आपको वहां पे जाके आपका पाथ ये देना है, कॉन्फ़िगर करना है, ऐसे 4 to 5 स्टेप्स है, वो करके आपका एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम यूजिंग जेनकिंस। ये हो गया आपको लोकली आपके मशीन से ये रन करना। दूसरी चीज होगी वो आपको ये शेड्यूल करना है, जैसे मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम को आपको शेड्यूल करना है। तो आपको बस आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक बिल्ड ट्रिगर नाम का ऑप्शन है, वहां पे आके आपको एक बिल्ड पीरियडिकली नाम का एक उसका एक ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्ड पीरियडिकली। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि पीरियडिकली मतलब कैसे होता है। दिस फीचर फॉर यूजिंग एज अ cron replacement as not ideal for continuous building software project। ओके, तो वो सारा सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं आपने कि आपको कैसे बिल्ड करना है, कितने आवर्स के बाद करना है, कितने मिनट्स के बाद करना है, ये सारे करने हैं। तो कुछ शॉर्टकट कीज है उसकी। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आप कर सकते, उसने पूरे के पूरे की उसके शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट कीज है, तो वो बस आपको टाइप करनी है। तो वो इक्लिप्स यहाँ पे आपको शेड्यूल में वो बस टाइप करनी है, तो ये जिनकी समझ जाएगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे उसने शॉर्टकट की दी है, एवरी 15 मिनट्स, हर एक 15 मिनट्स में अगर आपको एग्जीक्यूट होनी चाहिए तो आपको H/15 **** ऐसे ये कमांड आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो अ, उसके बाद एवरी 10 मिनट्स अगर आपको करनी है, एवरी 10 मिनट्स अगर आपको करनी है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एवरी आवर। तो ऐसे अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके कुछ डेमो दिए है, तो वो आपको बस समझने हैं और अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करने हैं। तो अगर मुझे सपोज हर एक 5 मिनट में मुझे 15 मिनट में मुझे अगर देनी है, तो मैं डायरेक्टली कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे जी टेस्ट केस है जो एग्जीक्यूट हो रही है, तो मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर एक 15 मिनट के बाद ये अपने आप एग्जीक्यूट होता रहेगा। मुझे 15 मिनट नहीं देना है तो मैं मिनट्स बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, 1 घंटा करूंगा, 2 घंटा करूंगा, 24 आवर्स करूंगा, तो हर एक 24 आवर्स के बाद वो होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी शेड्यूल कर सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली आप उसको डेट कर सकते हो कि एच स्पेस, अगर आप इसको ऐसे डेट कर रहे हो स्टार स्टार स्टार, तो इसका मतलब क्या है, आ, यहाँ पे देखो वुड कि ये अभी 5 हाँ, तो ये अभी हर एक डे में 5 AM को वो रन होगी। ठीक है, कुछ तो 5 के टाइमिंग को वो रन होगी, मतलब 5 PM। अभी अगर PM करना है तो उसको अपन 1 7 करना पड़ेगा, AM करना है तो 5 कर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब मैं क्या बताता हूँ, इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं, और वो अलग बात है, उसका एक टेबल आता है। मगर ये कहाँ से करते हैं आपको पता होगा कि अगर आपको बिल्ड ये जो फील है ना इंडस्ट्री का कि मतलब कहाँ पे करते हो आप ये चीज कॉन्फ़िगर, तो वो बस आपको पता होना चाहिए कि बिल्ड एनवायरनमेंट से हम सर बिल्ड पीरियोडिकली एक ऑप्शन होता है, वहां से हम अलग अलग उसकी जो सिंटैक्स है वो यूज करके हमें करना है जो टाइम वहाँ पे देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उसको
ये करते हैं। तो ये कैसे देखते हैं स्टार स्टार का, उसका एक टेबल है, वो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इससे 5 बजे क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी हर एक डे में। 5 AM को। तो ऐसे आपको जिस टाइम को चाहिए, जैसे चाहिए, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हर एक 5 मिनट में चाहिए, या हर एक डेट को चाहिए, स्पेसिफिक एक ही डेट को चाहिए, या हर एक डे में उसी टाइम को चाहिए, या हर एक मंथ में एक बार चाहिए। तो ये सब कुछ करने की प्रोविजन आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो आप होगे नहीं होगे, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, जिनकिन ये करता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अलग अलग अगर बिल्ड्स हो गए, मैंने बोला एक ही बिल्ड, तो ऐसे बहुत सारे बिल्ड्स हो गए। तो बहुत सारे बिल्ड होने के बाद आप उसकी प्रोग्रेस, या उसको आप क्या कर सकते हो, आ, उसका पूरा का पूरा ट्रेंड आप देख सकते हो कि सारे बिल्ड्स कितने पास हुए, कितने, कितना टाइम लगा और कैसे जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग बिल्ड का ट्रेंड भी आप देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें। मगर एक चीज ध्यान रखो कि ये जो है, ये आप कर सकते हो, मगर मेक श्योर अगर आपको ऐसे करना है तो आपकी मशीन शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकल पाथ दिया है ना आपने। तो लोकल पाथ में आने के लिए आपकी मशीन अगर शट डाउन है, तो जेनकिंस वो चीज नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको आपका जो कोड है ना, वो आपके मशीन पे स्टोर करने से बेटर है कि आप कहीं क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली लोकल मशीन के देने के बजाय क्या करते हैं, हमारा गिट का कोड देते हैं। तो ये गिट का कंसेप्ट अभी हमें देखना है। तो इनिशियली यहाँ पे हम जो पाथ देते हैं, तो वो हम देते हैं यहाँ पे जो लोकल का दिया है। तो हम नॉर्मल सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम ये गिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और जो पाथ देंगे, तो यहाँ पे ये नॉर्मल पाथ हम नहीं देंगे, तो हमारे गिट के ब्रांच का नाम देंगे, जो भी ब्रांच हमें रन करनी है वो। ओके, बस इतना चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। हम्म तो बस यहाँ पे हमारा गिट ऑप्शन होगा। गिट हब प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं चाहे तो हम, नहीं तो यहाँ से सोर्स कोड मैनेजमेंट में हम गिट सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो पाथ देंगे। तो अगर आपको ऐसे मेक श्योर करना है कि क्लाउड पे रन कर रहे हैं, तो ऐसे मत बताओ कि मेरे लोकल मशीन पे मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है इंडस्ट्री में। हाँ, ये बस मैं बता रहा हूँ कि लोकल मशीन से कैसे करना है। मगर इंडस्ट्री में हम कैसे करते हैं, वो उसमें हमारे गिट की हमारी जो रिपोजिटरी है उसका पाथ देते हैं, उसकी ब्रांच का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वो नेक्स्ट इसमें कि गिट, बस गिट देखना है हमें। गिट का पाथ तो यहाँ पे बस एक ऑप्शन आता है, उस ब्रांच का नाम अपने आप ऐड कर दो तो वो हो जाता है। ठीक है ना, तो वो करने के लिए कुछ सीखना नहीं है आपको, मगर गिट अभी हमें थोड़ा सा सीखना है, गिट के कमांड्स। ठीक है, तो ये जेनकिंस मेवेन हमारा हो गया पूरा, अभी बस गिट्स हमारा बचा है। तो वहां से हम करने हैं, तो इंडस्ट्री में गिट बताना है आपको, ऐसे लोकल मशीन से करते मत बता। वहाँ पे हम ब्रांच ऐड कर देते हैं हमारे गिट की, ऐसे हमें बताना है, फिर जस्ट एडिंग द रिस्पेक्टिव गिट ब्रांच हियर। ओके, तो ये था हमारा जेनकिन। तो कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो ये पे हम स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में अभी हम ये हमारा गिट करते हैं। ठीक है, फिर जस्ट आपको एक बीडीडी कुकुम्बर की इंट्रोडक्शन देनी है मुझे, कि उसमें चेंजेस क्या होते हैं। हाँ, फ्रेमवर्क तो बीडीडी कुकुम्बर मैंने भी बोला था कि फ्रेमवर्क हमें नहीं बनाना है, बस बीडीडी कुकुम्बर कि आपको कुछ चीजें वो पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल फ्रेमवर्क है, उसमें चाहे तो कल आप बीडीडी फ्रेमवर्क करके भी बता सकते हो। मगर बीडीडी फ्रेमवर्क में चेंजेस क्या होते हैं, उसमें कुछ हुक्स होते हैं या कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो वो क्या होता है और कैसा होता है, उसका जस्ट इंट्रोडक्टर मुझे देना है आपको, तो वो करूंगा, तो फिर हमारा सेशन ये खत्म हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको, अबाउट 5 मैंने भेजे हैं, अब तक सर ने अपलोड किए होंगे। और भी कुछ करने बाकी है, वो भी हो जाएंगे। तो और आपका जो ये है, बाकी तो हमारा ग्रुप है, उसमें आप लाइफ टाइम कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली, और इंटरव्यू जब भी आप प्रिपेयर हो जाओ तो मुझे बताना, तो हम इंटरव्यू भी अरेंज करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से 2 सेशंस और बचे होंगे हमारे। ठीक, तो फिर हमारा ये क्लोज हो जाएगा। ओके गाइस, तो कोई डाउट नहीं तो मैं हम क्लोज करता हूँ। टुमारो 6:30 AM विल मीट। ओके, थैंक यू।